Hello students, in this video we will discuss about the magnetic field pattern due to a circular loop carrying current or due to a current carrying coil. So in the last video we discussed about the magnetic field pattern due to the straight current carrying conductor, and this is the second type of magnetic field pattern which is produced due to the circular loop. So let's start. This is a cardboard. In the previous magnetic field pattern for the straight current carrying conductor, we used cardboard to pass a straight wire through the cardboard, but through this cardboard we pass this circular loop in such a way that the upper portion of the loop will be in this form and the lower portion of the loop is connected to a battery through a switch. So you are observing this diagram that this is a circular loop, and if we close this switch, then it is obvious that the current will start from the positive terminal of the battery. This current will start here and this current will flow towards the negative terminal through this circular loop and through this switch. In this way the current flows in clockwise direction. And what will be the effect of this current flow? If we use the magnetic compass, then we can observe the direction of the magnetic field which is produced by the flow of this current in the circular loop. Suppose if we keep the magnetic compass at the left hand corner, then we will observe that the direction of the magnetic needle, means the direction of the arrowhead, will be in such a way that it will show that the magnetic field, the concentric magnetic field which is produced, is in the anti-clockwise direction. And if we keep the same magnetic compass or different magnetic compass, second magnetic compass here, then we will observe that the direction of the arrowhead will be towards that direction, which shows that the magnetic field, the concentric magnetic field, is in clockwise direction. The theory behind this is the right hand thumb rule. Suppose if we keep, as I explained in my previous video, if we keep the thumb and curled fingers in such a way that the thumb indicates the direction of the current flow, and here we observe that when the current starts flowing from the positive terminal, and when this current comes out of this cardboard, it means we are talking about the upper portion of the loop, current carrying circular loop, then what will happen? It is clear that the current goes in the upward direction. So if we keep this thumb in the direction, in the upward direction of the current flow, then these fingers indicates the direction of the magnetic field, concentric magnetic field. So that's why these arrows of the concentric magnetic field represents that this magnetic field is in anti-clockwise direction when the current flows in the upward direction. And similarly, when the current flows in the downward direction, then the thumb will be towards down direction, and if we observe the curled fingers, then these curled fingers represents the direction of the concentric magnetic field, that is it will be in the
clockwise direction, like this, clockwise direction. Here the current flows in the upward direction, so the concentric magnetic field is in the anti-clockwise direction, and if the current flows in the downward direction, then the concentric magnetic field is in the direction of clock. So in this way the current moves down through, and it passes through switch and comes back to the negative terminal of the battery. And as we move away from the center, this magnetic field, concentric magnetic field, will be of this pattern, and in between these two centers we find that the magnetic field becomes straight line, means the circular magnetic field goes on decreasing as we move away from the center, or we can say that, in other words, we can say that if we talk about this circular loop, it means as we move, suppose this is the circular loop of magnetic field, not this loop up, this is the circular loop of current, this is the circular loop of wire. But if we talk about the circular loop of magnetic field, concentric magnetic field, then as we move away from the center through which that wire of the loop is passed, as we move away from this center, the strength of this magnetic field, concentric magnetic field, goes on decreasing. पिछले वीडियो में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे स्ट्रेट वायर से जिसमें करंट है उससे अगर दूर हम जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. तो यहाँ पे भी है, ये इससे इस वायर में करंट फ्लो हो रही है सर्कुलर वायर में, और जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगातार दोनों साइड में कम होती जा रही है, और बिल्कुल बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और वो जो सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में शो की जाती है कि बिल्कुल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी सबसे कम होगी. सो इन दिस वे देयर आर 3 factors on which the magnetic field strength depends. I explained you in the last video that magnetic field is represented by capital B. This you will study in class 12. The representation of magnetic field intensity is by capital B. So the magnetic field intensity is directly proportional to the current. Means if we flow more ampere current through this circular loop, then the magnetic field intensity will be according to the current. If the current will increase, then the magnetic field strength will also increase. Second thing, the magnetic field is directly proportional to small n. Small n means, what is small n? Small n is number of turns of circular coil. अब ये क्या है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे. एंड थर्ड वन, magnetic field strength is inversely proportional to the radius of the coil, where r is the radius of the coil, radius of coil. और अभी हम इसको कंपेयर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड magnetic field pattern produced by the straight current carrying conductor.
आप देखिए यहाँ पे आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को आप अगर याद करिए तो उसमें हमने क्या बताया था, फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कंपेयर करना है इसलिए इसको साइड में मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट वन मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट। तो ये और ये दोनों कॉमन हो गए। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट, और स्ट्रेट कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। सेकेंड, उसमें स्ट्रेट कंडक्टर में क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ऑफ the point where the magnetic field strength is required to be calculated. मीन्स स्ट्रेट कंडक्टर से कितनी दूरी पर, सपोज ये स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसे जैसे हम इससे, आप लोग याद कीजिए x और y उसमें मैंने लिया था कि अगर एक पॉइंट x है एक पॉइंट y है और ये सेंटर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R। यहाँ पे जो स्मॉल r था स्ट्रेट कंडक्टर में और जो सर्कुलर लूप में स्मॉल r है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्या डिफरेंट है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो स्मॉल r यूज किया गया, दैट स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। मीन्स करंट कैरिंग वायर से उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r in case of straight current carrying conductor. But if we talk about the small r which is used in the circular loop current carrying conductor, so this small r represents the radius of the coil. कौन सा coil? ये वाला coil, जो सर्कुलर कॉयल, सर्कुलर लूप जो हम यूज कर रहे हैं। जो स्ट्रेट कंडक्टर में जो स्मॉल r था, ये मैग्नेटिक फील्ड का आप रेडियस कह सकते हैं। स्मॉल r represents the radius of the magnetic current, radius of that concentric magnetic field. But here in the circular loop, small r represents the radius of the coil. जितना ज़्यादा रेडियस होगा, जितने कम रेडियस की कॉयल होगी, उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा। कैसे, अभी इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो एक ही चीज़ कॉमन हुई, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन हुई। कौन सी चीज़ है? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मीन्स करंट जितनी ज़्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। अब हमको डिस्कस करना है N पे और स्मॉल r पे फॉर दिस सर्कुलर लूप। तो देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, ये तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, तो सबको समझ में आ ही रहा है। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N, where N is number of turns of circular coil। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि हमारे पास, सपोज कार्डबोर्ड को मैं हटा देता हूं, केवल मैं कॉयल, इसको समझाने के लिए केवल कॉयल ले रहा हूं। सपोज दिस इज अ कॉयल ऑफ सिंगल टर्न and if this coil is connected to a battery, then the current will start from the positive terminal, it will move like this, and this current will come back to the negative terminal. And if we use another coil having the same radius, this R is the radius of this circular coil. If we use another coil of same radius, but here what we have done,
वी हैव डबल्ड दिस कॉइल, मीन्स जो एक रिंग था, वायर का एक रिंग था, सर्कुलर रिंग, हमने उसको डबल कर दिया, मीन्स दो रिंग हो गए। दो रिंग हो गए, इसका मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स n की जगह हम 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हमने डबल कर दिया तो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2। अब इसको सपोज ये कभी भी वायर क्रॉस किया जाता है, ऐसे डायरेक्टली किया जाता है, इसको इस तरह से ब्रिज बना करके किया जाता है। सपोज सेम पोटेंशियल की बैटरी से हमने कनेक्ट किया, पोटेंशियल सेम है, यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का भी, इस बैटरी का भी पोटेंशियल V है, सेम बैटरी, तो करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट होगी। यहाँ पे क्या था, करंट केवल एक ही कॉइल में फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट डबल कॉइल है, तो दोनों कॉइल में फ्लो होकर के तब ये नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आएगी। तो रेडियस वही है दोनों कॉइल का, जैसे यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, इन दोनों कॉइल का रेडियस R ही है। यहाँ पे आप लोग को डबल दिखाने के लिए मैंने इन दोनों कॉइल को अलग अलग दिखाया, अदरवाइज ये ओवरलैप करता तो ये सिंगल सर्कुलर फॉर्म में आपको शो होता। सो अब इन दोनों के इस फॉर्मूला के हिसाब से B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N, इन दोनों में किसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ये नेचुरल है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N, मतलब जिसका N ज़्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से किसका N ज़्यादा है? सेकेंड केस का N ज़्यादा है, जिसमें दो सर्कुलर लूप हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई? सेकेंड की ज़्यादा हुई, बिकॉज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N। अब इसी तरह से अगर आप बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि दो कॉइल आपको दे दी गई, एक ऑफ सिमिलर रेडियस एंड सिमिलर पोटेंशियल battery is used, then what will be the difference in the magnetic field strength? किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सेकंड आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N। नाउ अब हम थर्ड, ये सेकंड पॉइंट आपका मैंने क्लियर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट वैसे ही क्लियर था कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। अब कौन सा पॉइंट क्लियर हो गया? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N, ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R, ये यहाँ पे R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ कॉइल। अब यहाँ पे भी मैं जिस तरह से मैंने N को एक्सप्लेन किया, दो एग्जाम्पल लेकर के इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज एक हमने सर्कुलर कॉइल लिया और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, इस कॉइल से पास होगी और वापस फिर से नेगेटिव टर्मिनल में करंट आ जाएगी। एंड इन दिस केस सपोज दिस रेडियस इज R1, the radius of this circular loop is R1, and suppose if we take another loop having different radius of curvature, radius of this loop, then इससे बड़ा रेडियस हमने लिया तो क्या होगा? सेम पोटेंशियल की बैटरी है, करंट फ्लो हुई और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट आ गई। डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि इसका जो रेडियस है वो R1 से ज़्यादा है, R2 इज ग्रेटर देन R1, दिस R2 इज ग्रेटर देन R1। अब यहाँ पे इसको देखिए, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R, तो R2 is greater than R1, and because of this inversely proportional relation we can say that B2 is less than B1 और B1 is greater than B2। इसका मतलब क्या हुआ? ये शो कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन B and the radius of means between the magnetic field strength and the radius of the coil।
तो अगर R2 ज़्यादा है तो ये नेचुरल है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस बिग कॉइल will be lesser than the smaller coil, or in other words we can say that the magnetic field strength produced by this smaller coil means the coil which has less radius. So the smaller coil has got more magnetic field strength as compared to the bigger coil, so that's why B1 is greater than B2. तो यहाँ सर्कुलर कॉइल के आर और स्ट्रेट कंडक्टर के आर में डिफरेंस है. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आर का मतलब क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द वायर, करंट कैरिंग वायर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस करंट फ्लोइंग इन द स्ट्रेट कंडक्टर. तो यहाँ पे ये जो आर था स्ट्रेट कंडक्टर में वो ये था, और यहाँ के आर रेडियस ऑफ द कॉइल रिप्रेजेंट करता है. तो आपका ये भी क्लियर हो गया, तीसरा वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया. बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द रेडियस ऑफ द कॉइल. समझ में आ गया होगा, और डिटेल में मैंने समझाया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. ये सब डायग्राम्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे. जिस तरह से समझाया है इसको आप लोग बहुत ढंग से समझिएगा. एक बार अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर से देखिएगा. नाउ राइट डाउन अबाउट दिस. इफ a circular coil is passed through a cardboard and this coil is connected to a battery through a switch. If this switch is closed, then the current I start flowing in circular coil, and hence by right hand thumb rule the magnetic field in bracket concentric is produced according to it the current flowing up will have magnetic field in anti-clockwise direction, and the current flowing down will produce magnetic field in clockwise direction. याद कीजिए, जब करंट ऊपर की ओर जा रही है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की, और जब करंट ऊपर से नीचे जा रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी in the form of concentric circle. So as we move away from the center of magnetic field, the strength of magnetic field goes on
डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम सेंटर से स्टेट कंडक्टर में जो हमने पढ़ा था, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, मीन्स जैसे जैसे दूर जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। लेकिन ये स्ट्रेट कंडक्टर में हम लोग ने पढ़ा था, उसकी वजह से ही ये देखिए, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो बिल्कुल सेंटर पे एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कम होगी, क्योंकि करंट से जितना दूर हो जाएगी उतना कम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में शो किया गया। नाउ द फैक्टर्स on which the magnetic field strength depends। कौन कौन से 3 फैक्टर थे याद कीजिए। पहला, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट, मीन्स करंट अगर 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके हिसाब से होगा। अगर 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 20 एम्पियर की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 10 एम्पियर करंट। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। आपको समझा चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा कॉइल में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी होगी। सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। एंड थर्ड वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the radius of the coil, where R is radius of circular coil। ये 3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।